morning, students. I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to continue the chapter Events Tries an O level from Vistas of class 12th. So now I am coming to the end of the chapter. This is very lengthy chapter and very typical, and it is very typical to understand what is happening in this chapter. So I am telling you one by one in points. Okay, so now what happened today? I'll tell you what happened and at 10:45 a.m. during the examination. Before the ending of the examination, what was happening at 10:45 a.m. on the day of the exam, same day, Stephens looks through peephole at 1 minute intervals, found Evans having pen between his lips, starting when Miss. This was the duty of Stephens to keep eyes on Evans and McClary. So whenever he peeped into the hole, what did he notice? He noticed that Evans having pen between his lips, staring. He always found him staring at the roof and his pen in his lips. So at 10:50, again after 5 minutes later, what did he notice? Governor overhears Evans seeking permission from invigilator to put on grey regulation blanket around his shoulders. Now, whenever there was any conversation in the cell, the speaker of the governor क्रैकल्ड. जैसे ही सेल में कोई भी जरा भी बातचीत होती थी, उसकी स्पीकर में आवाज़ गूंजने लगती थी, एकदम से क्रैक हो जाता था गवर्नर का. तो गवर्नर ने सुना 10:50 पर उसकी इवेंस को डिमांड करते हुए एक ब्लैंकेट के लिए. इवेंस ने मैक्लरी से कहा कि अगर उनको कोई ऐतराज़ ना हो, इफ ही डोंट माइंड, कैन ही गिव हिम द ब्लैंकेट. क्या वो उनको एक ब्लैंकेट दे सकते हैं या उसके शोल्डर पर, उसके कंधों पर डाल सकते हैं. स्टूडेंट्स, उन्होंने इवेंस ने ये ब्लैंकेट क्यों मांगा? वाइल दिस एग्जाम वाज ऑन जून, इन द मंथ ऑफ द जून के मंथ में था. उस समय ब्लैंकेट की तो विंटर होता ही नहीं, इतनी सर्दी होती नहीं है. सो व्हेन Stephens, and this was the peephole, you can see from where Stephens peeped out. कहाँ से Stephens झांक कर देखता था? सेल के अंदर, क्योंकि उसे सेल से बाहर भेज दिया गया था. Stephens की जो ड्यूटी थी वो सेल के अंदर थी. लेकिन इवेंस ने मैक्लरी से कहा था कि अगर ये अंदर रहे, स्टीफेंस जो है जूनियर प्रिजन ऑफिसर, अगर वो जेल के इसके सेल के अंदर रहा तो ही विल नॉट बी कंसंट्रेट ऑन हिज पेपर. वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने पेपर पर. और ये बात गवर्नर ने स्पीकर पर सुन ली थी और उसने जैक्सन को ऑर्डर दिया कि स्टीफेंस को सेल से बाहर निकाल लो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था. रूल इज रूल. सो व्हाई डिड ही वांटेड, Evans wanted that Stephen should go out of the cell because he want to change his clothes. He want to come in the form of McClary. क्योंकि वो सेल के अंदर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कुछ प्लानिंग कर रहा था. वो मैक्लरी की तरह अपने आप को ड्रेसअप कर रहा था. दैट्स वाई ही ऑल्सो डिमांडेड फॉर ब्लैंकेट. ब्लैंकेट को उसने क्यों मांगा? क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर उसने मैक्लरी का जो ओवरकोट, जैसे मैक्लरी आया था प्रिजन के अंदर, ठीक उसने 2 ओवरकोट पहने हुए थे. तो एक ओवरकोट जो है वो मैक्लरी को इवेंस को देता है, जिसे वो ब्लैंकेट के अंदर चेंज करता है. ओके, सो दिस वाज द पीप होल फ्रॉम वेयर स्टीफेंस लुक्ड आउट ऑफ द look into the cell. And whenever he looked into the cell, whenever he peeped through the peephole, he always found Evans cell sitting having pen between his lips. उसको सिर्फ एक ही he did never write on the paper and nothing else, only keep his pen in his lips and stare at the door side. Now what happened at 10:51 a.m.? Just after 1 minute,
What did Stephen notice? He noticed Stephen sees Evans' blanket is still steering. He's noticed the blanket over the shoulders of Evans. स्टीफन्स को मतलब नोटिस करता है और वो सोचता है भी, क्योंकि जैक्सन ने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि अगर उसको कुछ ऑड लगे तो वो उसकी इंफॉर्मेशन जैक्सन को दे, सो दैट जैक्सन कुड इन्फॉर्म टू द गवर्नर. बट Stephen did not inform him because he thought that this cell is in the corner of the prison where the sun rays never come. So maybe possible that there will be some coolness in the cell. हो सकता है कुछ ठंडी हो वहाँ पर, चिल हो, इसीलिए उसको ब्लैंकेट की ज़रूरत हो. और वो उसको मतलब वहाँ पर उसको डाउट था, बट उसने वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर नहीं किया और अपने आप को समझा लिया रीजन देकर. ओके, सो नाउ at 11:20 am. What happened at 11:20 am? 11:20 पर. The time of the examination, ending of the time was 11:25 due to become late. So क्या होता है, द रिसीवर क्रैकल. फिर से रिसीवर में क्रैकल की आवाज़, एकदम से रिसीवर बजने लगता है गवर्नर के ऑफिस का. और उसने क्या सुना, गवर्नर चैम्बर मैक्लरी इन्फॉर्म्ड इवेंस दैट ओनली 5 minutes आर लेफ्ट. As you also have seen in your 10th class that before the end of the exam, before 5 minutes there become a bell. एक warning bell होती है जो कि आपको warn करती है 5 minutes are only 5 minutes are left for preparation for arranging the sheets. Okay, so ये रिसीवर के द्वारा, रिसीवर से गवर्नर मैक्लरी की इंस्ट्रक्शंस को सुनता है. सो नाउ व्हाट हैपन, नाउ एट 11:20 am, 11:22 पर क्या होता है, जैक्सन शाउटेड 3 मिनट पहले, जस्ट बिफोर द 3 minutes ऑफ द एग्जामिनेशन एंडिंग. एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट पहले गवर्नर की कॉल आती है जैक्सन के पास कि उसे स्टीफन से बात करनी है. स्टीफन सेल के पास बाहर से जो उस पर नज़र रख रहा था इवेंट्स पर, वो बाहर निकल कर आता है. ठीक है, सॉरी, वहाँ से गेट से अलग होता है, सेल के पास से फ़ोन रिसीव करता है और फ़ोन पर गवर्नर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ही विल ड्रॉप मैक्लरी टू द गेट. हु विल ड्रॉप? Stephens, junior prison officer Stephens will drop McClary to the gate of the prison after completing the exam. Okay, while this was the duty of Jackson, because Jackson was a senior officer, he also picked him up from the gate and this was the duty to drop him off to the gate. But this was the order of governor to Stephens. In reality, this was not the call of governor of the prison officer, this was a fake call. वास्तविकता ये थी कि ये जो कॉल थी फेक थी, यानी किसके, इवेंट्स के ही किसी व्यक्ति की थी, इसके ग्रुप के ही किसी व्यक्ति ने कॉल की थी. स्टीफन्स को इसलिए मैक्लरी के साथ जाने के लिए कहा गया था क्योंकि स्टीफन्स जो था जूनियर प्रिजन ऑफिसर था और वो उतनी बारीकी से चीज़ों को ध्यान नहीं देता जितने की शायद जैक्सन देता. So the governor heard the final exchange between McClary और 11:25 पर 11:22 पर कॉल थी. 11:25 पर गवर्नर को रिसीवर से मतलब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कॉपी, हालांकि एक ही स्टूडेंट था तो उसकी कॉपी कलेक्ट करने, पेपर्स की शफलिंग की आवाज़ उसको सुनाई देती है. द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंज बिटवीन मैक्लरी एंड इवांस. एग्जामिनेशन ओवर मीन्स कन्फर्म हो जाता है कि एग्जामिनेशन हैज़ बीन ओवर. So when did the examination over? At 10:25. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो सूटकेस था उसमें मैंने एक चीज़ बात को बताना भूल गई. सूटकेस के अंदर एक रबर रिंग था. रबर रिंग के बारे में जब जैक्सन ने पूछा था, क्योंकि वो उसको कुछ ऑड लगा, उसने पूछा जैक्सन ने मैक्लरी से कि आप यहाँ से स्विमिंग के लिए जाने वाले हैं. तो जैक्सन मैक्लरी को गुस्सा आ गया. उसने कहा कि नहीं, ये जो रबर ट्यूब मैं इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज ऑफ पाइल्स एंड शी वॉज अनेबल टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई ही यूज दैट रबर रिंग वाइल इट इज़ नॉट अलाउड.
during the examination to any person. Such types of things are not allowed, but Jackson was not aware with the rules and regulation of the examination. That's why he give him permission, या he accepted his excuse. उसको excuse को वो स्वीकार कर लेता है या मान लेता है और उसको डीपली नहीं पूछता उसके बारे में। तो वो जो रबर रिंग थी वो क्या थी, वो उसके लिए नहीं लाया था बैठने के लिए। उस रबर रिंग के अंदर क्या था, उसके अंदर ब्लड था। ब्लड अगर आप लेकर आएंगे तो उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, वो क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। अब उसको क्लॉटिंग से रोकने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 or 3 hours, what have to be done? There is the mind of the scientific also. Evans was very clever. He used his scientific mind to make a plan of bringing blood into the prison. How can the so much blood can be come into the prison? कैसे लाया जा सकता है? It was not easy, but with the help of this rubber tube, this blood was brought into the cell. तो अब उस ब्लड को कैसे लिक्विड फॉर्म में रखा जाए, उसके लिए उस ब्लड के अंदर 3.8% जो था ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाया गया था और उसके साथ साथ उसमें रियल ह्यूमन बीइंग्स ब्लड को भी मिक्स किया गया था, सो दैट द ब्लड कुड नॉट बी क्लॉट, ओके, क्लॉटेड। नाउ एंड फ्रॉम वेयर ही गॉट द ब्लड, कहाँ से उसको ब्लड मिला? The blood, he found the blood from the slaughter house. Slaughter house जो होता है जिसे हम कहते हैं कसाई बाड़ा, वहाँ से उन्होंने पिग का ब्लड लिया। पिग्स ब्लड फ्रॉम स्लॉटर हाउस ऑफ किडलिंगटन ब्रॉट इन स्मॉल सेमी इनफ्लोटेड रबर रिंग। सो दिस वॉज द अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड टू ब्रिंग इन टू द सेल। ये अरेंजमेंट था सेल के अंदर ब्लड लाने का और उसको लिक्विड फॉर्म में रखने का। डिटेक्टिव, एंड दिस इज द कार ऑफ डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर, ये उसकी कार है। अब एग्जाम ओवर होने के बाद क्या होता है कि स्टीफंस जो है वो मैक्लरी को गेट तक ड्रॉप करने जाता है, क्योंकि जैक्सन भी कुछ नहीं कह पाता, उनके हिसाब से तो गवर्नर के ऑर्डर है, जबकि वो गवर्नर नहीं था, वो इवेंट्स का ही कोई कौन था, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि किससे मिला हुआ था, इवेंट्स से मिला हुआ था। सो अब क्या होता है, जो मैक्लरी गया है, व्हेन एवर ही वाज गोइंग टू द गेट विद मैक्लरी, देन स्टीफन नोटिस समथिंग। व्हाट डिड ही नोटिस? वो नोटिस करता है कि द हेयर ऑफ द मैक्लरी वाज क्रॉप्ड विद द स्कैल्प, नियर द स्कैल्प से बहुत छोटे छोटे बाल उसके कटे हुए हैं और वो जो था थिन, ही वाज लुकिंग सम थिन रेदर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा पतला नजर आ रहा है और उसका ओवरकोट भी जो था वो नीच से अब नीचे जा रहा था, जबकि पहले वो ऊंचा था जब वो एंटर किया था। ऐसा क्यों था मैं यहीं पर बता दे रही हूँ, चैप्टर में तो बहुत एंड में आपको पता चलेगा, क्योंकि मैक्लरी 2 कोट पहन कर आया था, तो एक कोट निकालने के बाद वो थिन हो गया और उसकी जो कोट की हाइट थी वो जो नीचे वाला था वो लॉन्ग हो गई। तो ये रीजन था जो उसने नोटिस किया था। स्टीफेंस गलत नहीं था, बट उन्होंने अपने उन शक को दूर करने की कोशिश नहीं की थी। फिर उसके बाद जब वो वापस आता है, वो सेल में एक बार चेक करना चाहता है कि इवेंट्स जो है ठीक है, कोई अंदर गड़बड़ तो नहीं है। अभी तक वो खुश था कि एग्जाम बहुत अच्छे से फिनिश हो गया है। सो अंदर जाकर देखता है कि इवेंट्स की चेयर पर मैक्लरी, अभी वो सब क्या समझ रहे हैं, मैक्लरी, इवेंट्स की चेयर पर मैक्लरी जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ब्लड है, ठीक है, पूरा वो ब्लड से। देखिए जब कहाँ किसी की चोट लगती है, किसी को मारा जाता है, तो ब्लड जो है उस जगह से जहाँ पर घाव हुआ है, जहाँ ही वॉज हिटिंग, ब्लड फ्लो फ्रॉम दैट प्लेस, वहाँ से फ्लो करता है और उसी साइड को पूरे को गीला करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैक्लरी जेल सेल के अंदर पाया गया चेयर के ऊपर, वो पूरे का पूरा ब्लड से, मतलब उसके बाल भी पूरे ब्लड से एकदम सन गए थे, उसकी आईब्रोज, बियर्ड, सब कुछ। तो उसकी वजह से वो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया कि हु इज दिस वन, मैक्लरी और इवेंट्स। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ देयर प्लान, वो उनके प्लान, योजना का एक पार्ट था कि उसको पूरा मतलब घायल अवस्था में दिखाना है। तो इस तरीके से ब्लड, और वो ब्लड क्या किया गया था, पोर किया गया था, ऊपर से उड़ेला गया था।
तो सोचने की बात यहाँ थी कि उस समय जब उसको नोटिस किया गया तो ये चीज़ नोट की जानी चाहिए थी कि इस तरीके से ब्लड कैसे निकला है। तो उन्हें लगा बहुत ज़्यादा उसके चोट मार गया है, इवन जो इसको मारकर भाग गया है जेल से बाहर। तो उस समय पूरी जेल में जो है वो एकदम चिल्लाता है। पहले जैक्सन को बुलाया जाता है, फिर जैक्सन गवर्नर को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद जेल में और आसपास के पुलिस स्टेशन में कॉल कर दी जाती है फॉर द एस्केपिंग ऑफ द प्रिजनर। एंड देन डिटेक्टिव कार्टर वॉज कॉल्ड कॉल्ड बाय गवर्नर के द्वारा उसको बुलाया जाता है। वो अपनी पुलिस वैन में बैठकर आते हैं। नेक्सन इवेंट सर्च ऑन एंड ड्रॉप्स इंजर्ड मैकलरी। और इसी कार में जो है कार्टर जो है उस मैकलरी को जो घायल अवस्था में है उनको कहाँ ड्रॉप करते हैं, इंजर्ड मैकलरी को नियर एग्जाम बोर्ड ऑन एल्सफील्ड वे। एल्सफील्ड वे पर एग्जामिनेशन बोर्ड के पास ही एक वो था हॉस्पिटल था, रेडक्लिफ हॉस्पिटल, जहाँ एम्बुलेंस उसको लेने आती उसके पास स्पॉट पर, मेन हॉस्पिटल में नहीं छोड़ा था, एक जगह पर जहाँ पर उसको छोड़ा था, जहाँ से एम्बुलेंस उसको मतलब रिसीव करती है, उनको ड्रॉप कर देते हैं इस वैन से। सो दिस इज अ एम्बुलेंस एंड रेडक्लिफ हॉस्पिटल। ये एम्बुलेंस जो है रेडक्लिफ हॉस्पिटल से वहाँ गई थी जहाँ पर मैकलरी को ड्रॉप किया गया था। लेकिन जब ये एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है तो मैकलरी वहाँ नहीं मिलता। मैकलरी जो घायल अवस्था में था वो वहाँ से भाग चुका था। सो एम्बुलेंस सपोज टू पिक इंजर्ड मैकलरी बट इवेंट्स इम्पर्सनेटेड एज मैकलरी स्लिप्स अवे। तो वो कौन था जो मैकलरी की रूप में बाहर लेकर आए हैं? इवांस था वो, जो घायल अवस्था में था, जिसे अभी तक सब लोग ये सोच रहे थे कि ये मैकलरी है। मैकलरी को इवांस मारकर मतलब उसको घायल करके हर्ट करके वो मैकलरी के रूप में दाढ़ी वगैरह लगाकर स्पेक्स पहनकर वो जेल से बाहर भाग गया है। तो उन्होंने मैकलरी को अब यहाँ पर उस ये वैन है और ये हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर मैकलरी नहीं मिलता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो दिस वॉज द प्लान ऑफ इवेंट्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। इस अब जो है वो प्रिजन से खुद सम्मान के साथ किसके द्वारा लाया गया? जैक्सन, स्टीफेंस, गवर्नर कार्टर एंड इंस्पेक्टर बेल। तो भागा नहीं है वो, देखिए उसकी प्लानिंग योजना देखिए कितनी क्लेवरली उसने बनाई है कि वो किसी भी कैदी की तरह नहीं भागा, एक चोर की तरह बड़े सम्मान के साथ उसको बाहर लाया गया। और उस प्लानिंग के दौरान अब वो यहाँ से वो भागा है। जब इवांस भागता है तो वो लास्ट मतलब खुश किस तरीके से खुश हुआ ये उसका लास्ट लाफ दिखाते हैं। एंड में भी वो एक बार गवर्नर की तरफ हंसता है। ऑन वन लाइन समरी, अब इस चैप्टर की समरी क्या है? द थीम ऑफ द स्टोरी इज अ क्लेवर एस्केप प्लान्ड बाय अ convict on the presence of taking a language exam in the prison. The convict, even after being caught, still has the last laugh and makes his escape. इवेंट्स यहाँ से तो भागता है, लेकिन यहाँ से भागने के बाद वो क्या करता है कि वो एक मार्केट में जाता है, सेंट्रल मार्केट। वहाँ पहले अच्छा जो वैन थी वो वैन में जाकर अपने आप को चेंज करता है, अपने वॉश वगैरह करता है, जो ब्लड था उसको साफ कर कपड़े चेंज करता है। मार्केट से जाकर कुछ खाना पीना खाता है, वहाँ पर एक नई कैप खरीदता है। उसकी जो बियर्ड थी उसने फॉल्स बियर्ड लगाई थी, उसकी वजह से उसको ईचिंग हो गई थी, बाल उसको अपने ब्लेड से छोटे छोटे काटने पड़े थे मैकलरी की जैसे, जिसके लिए उसने नई हैट खरीदी उसको कंसील करने के लिए। वो वहाँ से होटल जाता है, कौन सा? गोल्डन लायन होटल। और ये गोल्डन लायन होटल की जो इन्फॉर्मेशन है उस करेक्शन स्लिप के द्वारा उसको दी गई थी। वहाँ पर जैसे ही वो गेट खोलता है, अंदर जाता है, तो उसे उस होटल के अंदर उसके बेड पर कौन मिलता है? गवर्नर मिलता है। गवर्नर से वो पूछते, पहले चौंक जाता है और सोचता है कि अब वो पकड़ा गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर गवर्नर से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? तो उसने कहा करेक्शन स्लिप। कहते हैं ठीक है। फिर वहाँ पर वो अपनी सारी योजना जो है गवर्नर उससे पूछता है प्लानिंग की, तुमसे कभी मतलब इस बात का स्पेशल ध्यान रखा गया था कि कोई तुम्हें ना देख पाए, लेकिन तुम वहाँ से भागे कैसे? तो उसने बताया कि जो जर्मन टीचर था वो मतलब मुझसे मिला हुआ था। क्या आपने कभी उसका ऑथेंटिकेशन कार्ड चेक किया कि वो कहाँ से है? वहाँ पर गवर्नर को अपनी गलती का एहसास होता है, मतलब जितनी गलतियाँ उसने की थी उन सब का एहसास होता है। और वो इवेंट से कहता है
कि हम रोज़ कैदियों से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। आज तुमसे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। फिर वो उसे लेकर बाहर आते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि गाड़ी रेडी है। प्रिजन वैन सामने तैयार थी जिसमें कि हैंडकफ्स लेकर हथकड़ी के साथ प्रिजन ऑफिसर्स तैयार थे और वो उसको इवांस को जो है अपने साथ बैठा। इवांस जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है वो उसको हथकड़ी लगाते हैं और उसके बाद इवेंट्स उनको गुड बाय कहता है और गवर्नर भी ऐसे उसको सी ऑफ कर रहे हैं जैसे वो किसी कॉकटेल पार्टी से किसी अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए आए हैं। और लास्ट में क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर बैठता हो, गाड़ी स्टार्ट होती, कार स्टार्ट होती है, जो उसके अंदर प्रिजन ऑफिसर बैठा हुआ था वो उसके हैंडकफ्स को खोल देता है, हथकड़ी को खोलता है और इवेंट्स उसके बाद बड़े रिलैक्स के साथ सीट पर बैठता है और लास्ट बार गवर्नर की तरफ मतलब उस हंसी बनाते हुए उसके एक मतलब इस तरीके की स्माइल पास करता है कि उसे एक बार फिर से उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया और फाइनली वो वहाँ से फिर से एस्केप हो जाता है। ही ऑल्सो एस्केप्ड 5th टाइम फ्रॉम द प्रिजन इन फ्रंट of before the eyes of the governor. So this was the story Evans tries an O-level exam. Thank you student. I think each and every point have been clear to you and there is need a lot of things to know about this chapter, so you have to read it deeply. Thank you and have a nice day.